they interact with each other, children and parents. So parents will help the children for that. So whatever the children understand and parents will understand more than them and they will guide the children. So today's session is how to improve the memory. Shortly our guests will be here, the world record holders and the psychologists now. Come onto the stage. बच्चे लोग ready हो? From which class you are? Tell me one by one. Mic will go there also. One mic will get audience. You will have to say. But before that, we'll play a game. Raise your hands who all children are here. That's good. I will show you an activity. Just want to see how far you can play it. A small brain gym activity. After that, we'll have the oral game. Ready? Everyone, sound. Ready? Very good. Okay. Use your both hands, raise. One side you will say, show me 1, and the other side you will say, show me 5. Again here 1, here 5. We will play together. Come on, start it. বাদ না এটা প্রচুর বড় এটা প্রচুর লাভ Hello everyone. Say hi. Kids. कोई smart kids नहीं है यहाँ पे? If you all are smart kids, raise your hand. How many of you smart parents? Smart parents. Parents smart नहीं है तो बच्चे कहाँ से smart बनेंगे? I want everyone hands to be raised. अगर आप smart नहीं
Good morning, everyone. Is this a good morning? Good afternoon. Is this good morning? Good afternoon. Okay, how many of you are ready to play a game with me? Kids, all children, you are ready? Stand up. Kids, only kids. For parents, no exercises. Sit down. Stand. Sit. Stand. Stand. Stand up. Sit down. Clap. Jump. Stand. See, now when I will say stand and jump, then only you are going to follow. In sitting position, you are not going to jump. Listen carefully. Standing position is followed by jump, but for sitting position, no jumping. Ready once more? Yes? Stand. Sit. Stand. Sit. Jump. What I said? Only while sitting you should not jump. Only while standing you should jump. Open your ears. Open your ears. खोल के सुनना. You all are ready to open your ears? Okay? देखते हैं कितना स्मार्ट हो, कितना ध्यान से सुनते हो. अभी पता चल जाएगा स्कूल में क्यों सुनते नहीं हो. ऐसे सुनोगे तो कैसे पढ़ाई दिमाग के अंदर जाएगा आपको. Okay? Listen very carefully. Okay? Stand up. Jump. Sit. Clap. Jump. Oh. फिर से one last time. यही रीजन है क्लास में एक मैडम बोलते हैं और आप दूसरा सुनते हो. ठीक है? Parents, do you agree? Parents, do you agree? This is the reason kids won't listen properly in the class. दो टीचर कितना भी चिल्लाए, कैसे भी पढ़ाए, कैसे भी करते हैं. Once more, be conscious. वरना घर जाते जाते पापा लोग आपको धुलाई कर लेंगे. Parents, listen, be careful, okay? Stand up. Clap. Sit. Stand. Sit. Clap. Jump. Oh. What's going on? What's going on? स्मार्ट बच्चे मतलब हार दिखाए. स्मार्टनेस मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है. Parents can just imagine how nowadays the kids' focus is going on, where it's going on after several practices, after so many giving training also they are doing the same because they are in their own world. And as a parent, as a teachers, what task is to bring them back to the focus. Hello. Good morning. Very good. Now, just follow my instructions, okay? Look at me. Don't listen to my voice, okay? Look at me. Don't listen to my voice, okay? Raise your hand. Touch your shoulders. Touch your head. Wiggle your hands. Touch your belly. Touch your shoulder. Touch your head. Touch your head. What I said? Look at me. Don't listen to me. Look at me. मुझे देखो. मुझे सुनो मत. Once again, let us play. Once again, let us play. Yes? किसको नींद आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? ध्यान से सुनोगे ना इस बार? वरना मैं गेम से चली जाऊँ. मैं नहीं खेलने वाले आप लोगों के साथ. ठीक से खेले. क्या करिए? सिर्फ मुझे देखोगे. कान बंद. ओके? कान बंद. हाथ से बंद करने की जरूरत नहीं है. ओके? दिमाग में कान बंद. Only give work to your eyes, okay? Once again, study. Let us start. Very good.
Wiggle your hands, wiggle your hands, wiggle with me, wiggle with me, wiggle with me. Touch your head, touch your head, touch your nose, touch your nose, touch your belly, touch your belly, touch your shoulder, touch your shoulder, touch your head, touch your head, touch your head, touch your head, touch your nose, touch your nose, touch your belly, 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 touch your nose. Good job. थोड़ा बेहतर बन गया, थोड़ा बेहतर, very good. अभी आप लोग कोई गेम बोलोगे मुझे? किसी को मुझे कुछ गेम बोलना है? बोलो. क्या गेम खेलें? म्यूजिक चेयर खेलेंगे. यहाँ पे म्यूजिक चेयर खेलना बिल्कुल होने वाला नहीं है. हमें तो वहाँ पे एक स्टेडियम बुक करना पड़ेगा म्यूजिक चेयर खेलने के लिए. ठीक है. और एक कि हाउ मेनी ऑफ यू नो द वर्ड गेम? वर्ड गेम सबको पता है ना? यस. ओके. विंगमैन, आई विल आस्किंग समथिंग सो यू विल बी असिस्टिंग विद योर माइक. ओके. मैं एक वर्ड बोलूँगी. ठीक है. वो वर्ड के लास्ट साउंड के साथ आपको वर्ड बनाना है. लास्ट लेटर नहीं, लास्ट साउंड. मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ध्यान से सुनना. लास्ट साउंड. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. ओके. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. एप्पल. एप्पल का लास्ट लेटर क्या है? ई है. पर उसका साउंड लास्ट में क्या है? दैट मीन्स एल. तो मुझे एल के साथ और एक लेटर चाहिए. अंडरस्टैंड? डोंट गो विद द स्पेलिंग, गो विद द साउंड. ओके. आपको स्पेलिंग ना आने से भी चलेगा. रेडी? समझ में आया? यस. यू विल रेज योर हैंड. शाउटिंग, नो शाउटिंग. जंप नहीं करोगे, ना 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 करने की तरह बिल्कुल नहीं करोगे. ठीक है? नो लेटर, ओनली साउंड. योर फोकस शुड बी ऑन द साउंड. ओके. हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? Very good. So I am going to divide the audience into the three parts: first, second, third. Okay? For मैम first block पेड़ को, second block पेड़ को वैसे करेंगे. So cat, cat. Okay. Time, time. Next word, time. Mango. Mango. Very good. Mango. Owl. 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 फिक्स कर दे जो बात ना ही है. Okay. अरे मुझे जानती है ये वही. पापा से पूछ के बोल रही हूँ. Level. Level. Okay, ma'am. No need of something different. They can shout and tell the answer. You can just take care of the class. Level. Come on, last में कोई yes, the last red T-shirt. You can tell. कोई भी? हाँ आप. अरे चिल्लाना मत. आपके पास माइक आएगा तब बोलो. चिल्लाओगे तो आपका आंसर दूसरे लोग सुन लेंगे. Level. Long. 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 Yeah, come on, you tell me the long. Huh? See, it's not long. Means which letter? G. G. पब्लिक जगह हाथ में Goat. Goat. And one more rule. Okay, जो एक word use कर लिया वो वाला word आप use नहीं करोगे. I want only new words. मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लगता. ठीक है? Goat. Last. Thank you. Last. आपको सब कुछ आता है मुझे पता है. बैठो. Tiger. What? Tiger. Tiger.
R. R. Rose. Rose. Okay. Yes? Huh? Rain. Okay. With word. Sound. With which letter? Next. Means कौन सा letter है? Means कौन सा letter है? बोलो. N. Yes. Yeah, you tell me. Nose. 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 Okay. Any others? Nose हो गया. I want some new words. Never. Huh? Never. Okay. Never. Again, वो S P R ये चार अक्षर मिल रहे हैं आप लोगों को. Never. Yes. Huh? Name. Never. R. Night. 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 Never. R. Rope. 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 Okay, rope. Which letter at that? Rope. मैं क्या बोली? No spelling. Only the sound. Rope. P. Penguin. You? Parrot. Parrot. And? Yes, tell me. Papaya. Pen. Pig. 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 अब क्लास हो मैं बोलती हूँ आपको. क्लास हो. Pencil. Pencil. Okay. Pencil. Pencil. Okay. Potato. हो गया. अभी हम लेवल 1 के गेम खेलेंगे. ठीक है. अभी हम थोड़ा लेवल 2 के गेम खेलते हैं. ठीक है. मैं अभी साउंड बोलूंगी. उस साउंड्स के आप क्या बोलोगे? वर्ड्स बोलोगे. ठीक है. थोड़ा ध्यान से सुनना. ओके. नाउ ईयर्स ओपन. आगे खोल दिए. बंद कर दिए तो ना अभी थोड़ा खोल लो. अभी इस साउंड से मुझे वर्ड्स चाहिए. Stairs. Stairs. एक एग्जांपल दे दो. एक एग्जांपल दे दो. हाँ? साउंड आना चाहिए. च. जैसे कि chain, chocolate, उस तरह का साउंड. Shout. Shout. देखो shout में shout है. मुझे चाहिए champion. Very good. You are a real champion. बोलो. Champion बोल दिया. नया 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 वर्ड चाहिए.
साउंड मुझे वर्ड्स बोलो भाई लगी थी माँ आप तो नहीं तो कौन कर शाउट देखो अभी मुझे देखो मैं बोली साउंड से वर्ड्स बोलेंगे आप लोग मैं साउंड से वर्ड्स बोल रहे हो मुझे वो वर्ड्स नहीं चाहिए ठीक है पिलाने हफ्ता में टैक्सी शेक शू शाउट ठीक है टैक्सी shut up I am not going to shut up see parents Snake. हाँ Snake. स्नेक नहीं होगा मुझे शिप चाहिए मुझे सिंह नहीं चाहिए पेरेंट्स kind request this is not any exam this is not any competition let's think and tell okay in exam who is going to go and help let's सोचिए उनको सोचने दीजिए Sun. shine sheep see if there is a diamond आगे until no करके pressure कोई हाथ until देखिए no कोई तार gas देखिए मार दो until nothing they are not going to shine okay now Outsider this is मारियो the ना, इंद्र uncut मारियो भी diamond कोई नहीं। without shining if you will help them no one can cut them Hen. huh Hen. shame what sound I said oh right shame good job Sun. once again sound sun है वो है नहीं है Shipping. shipping very good Shell. shame हो गया soup नहीं होगा मैंने Shower. shower very good shame हो गया Shoulder. shoulder very good आपने वर्ड ठीक से बोले हो पर आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया शोल्डर नहीं है शोल्डर है ये राजेश्वरी मैडम को मुझे बहुत पसंद था Dog. कार्ड निकल सेवन कोई शिवर व्यक्ति फोटो फोटो मेरे कोई फोन रहते तो फोटो शी ओके आप आराम से पास में बैठ जाओ Sail. shade good now let us one more sound oil Salt. okay Salt. okay now next okay मुझे मैं थक गई आप लोगों के साथ खेल खेल के मैं 5-10 मिनट रेस्ट ले लेती हूँ आप भी रेस्ट ले लो उसके बाद फिर से मिलेंगे फिर से दिमाग को थोड़ा काम दे ओके विल मीट अगेन बाय बाय It's my great pleasure to extend a warm and heartfelt welcome to all our esteemed guests. We are honored by your presence. Please, I request our guests, please be on the stage. I request first Sir Jayesh Bhatt. He is India's leading memory science expert. He is the world record holder. Title is Human Calendar. And he is the founder of World Innovative Brain School Private Limited. Let's welcome him with great applause. And also, I love to welcome Ma'am Mahima Jain. Miss Mahima Jain. She is a psychologist. She has the expertise in child and private limited. I request our brain school team please be on the stage. And also, I welcome this is all about the brain school. The director ma'am is Usarani Padi who has arranged all this session. With great applause, I request her to be on the stage. I request brain school team please be on the stage and welcome our guest. We are honored by your presence and truly appreciate you taking the time to join us on this special occasion. Your presence adds great value and significance to this event. We hope you have a pleasant and memorable experience with us. Once again, a very warm welcome to all of you.
सुन पा रहे हैं आप लोग? ओके, तो आज के टॉपिक सिखाने वाला हूँ कैसे हम एक अच्छी पेरेंटिंग करें और बच्चों की ब्रेन पावर को बढ़ाएं। तो रेडी हैं आप सब लोग? यस और नो? यस और नो? एनर्जी कम लग रहा है? यस और नो? वेरी गुड। हम लोग जयपुर से आए और हम पूरा इंडिया ट्रैवल करते हैं और सबको यही बताते हैं कि आपके ब्रेन की पावर बहुत बहुत ज़्यादा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं आपको आज प्रूव करने वाला हूँ। आपको ब्रेन एक्टिविटीज़ कराना है, ठीक है? ब्रेन स्कूल का सिर्फ इतना सा काम है कि आपको ये बताया जाए कि कितना अमेजिंग आपका ब्रेन, ठीक है? तो पहला गेम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हाय बोलूँगा सबको और आपको मुझे क्या बोलना है? हेलो। वेरी गुड। जिससे हम लोग फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट हो जाए, फिजिकली प्रेजेंट और मेंटली प्रेजेंट हो जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। हाय। सारे पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। हाय, हेलो, हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, हाय हेलो हेलो हाय, हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, हाय हेलो हेलो हाय। वेरी गुड। सबको पार्टिसिपेट करना है, पेरेंट्स को भी पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? वापस से स्टार्ट करते हैं। हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, हाय हेलो हेलो हाय। वेरी गुड। अब आप मेंटली भी प्रेजेंट हैं। कितने लोग अपनी ब्रेन पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं? हैंड रेज करें। सब लोग चाहते हैं? वेरी गुड। सारे पेरेंट्स वगैरह ये सब चाहते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं कि अपनी ब्रेन पावर को कैसे इम्प्रूव करें। एक और गेम खेलते हैं और देखते हैं कि हमारा मेमोरी पावर कैसा है। रेडी हैं हम लोग? ठीक है। तो जो मैं करूँगा वो आपको करना है, ठीक है? और उससे पहले मुझे बताइए कि हम सबसे ज़्यादा कैसे सीखते हैं? सीखने में सबसे ज़्यादा कैसे सीखते हैं या फिर कौन सा मेमोरी हमारा स्ट्रॉन्ग होता है? आई मेमोरी और ईयर मेमोरी? यस। आई मेमोरी? यस। आई मेमोरी और ईयर मेमोरी? यस। ईयर मेमोरी। कोई कह रहा है ईयर मेमोरी, कोई कह रहा है आई मेमोरी। चेक कर लेते हैं कि हम सबसे ज्यादा कब सीखते हैं। चलिए गेम खेलते हैं। जो मैं करूंगा बस वही आपको करना है, ठीक है? टच योर हेड, टच योर नोज, टच योर ईयर। वेरी गुड। टच योर हेड, टच योर नोज, टच योर ईयर, टच योर हेड, टच योर नोज, टच योर लिप्स। तो कौन सा मेमोरी स्ट्रॉन्ग हुआ? ईयर या आई? ओके, वापस से करने समझ आएगा। टच योर हेड, टच योर नोज, टच योर ईयर, टच योर हेड, टच योर नोज, टच योर ईयर, टच योर नोज, टच योर चिन, टच योर चीक्स, टच योर शोल्डर, टच योर हेयर, टच योर नोज। यानी हमारा आई मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए इस बात की चिंता मत कीजिए जो हर पेरेंट मुझे बोलता है कि सर बच्चा हमारी सुनता नहीं। कितने पेरेंट्स बोलते हैं कि सर बच्चे हमारी सुनते नहीं? तो इस बात की चिंता मत कीजिए। चिंता इस बात की कीजिए कि बच्चे हमको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो जितना हम सुनकर नहीं सीखते उतना हम देख कर सीखते हैं। तो सब रिपीट करेंगे। जितना हम सुनकर नहीं सीखते, बोलिए, उतना हम क्या सीख करके सीखते हैं? देख कर सीखते हैं। वापस से करते हैं इस एक्टिविटी को। आपको पूरा फोकस मेरी तरफ करना है। चलिए, टच योर हेड, टच योर नोज, टच योर ईयर, टच योर हेयर, टच योर नोज, टच योर शोल्डर, टच योर हेयर, टच योर नोज, टच योर लिप्स। सो इज दिस क्लियर? तो पहली बात हमें समझ आ गई कि हमारे बच्चों जब भी पेरेंट ये बोले कि सर वो सुनता नहीं है, तो सुनने की चिंता मत कीजिए, वो हमें देख कर सीखेगा। ठीक है, तो ये बात हमने समझी। पहला हमने ब्रेन गेम खेला जिससे हम
फिजिकली हम प्रेजेंट थे, मेंटली भी प्रेजेंट हो जाए। अक्सर हमारा दिमाग क्या करता है, वो हमेशा हमें फ्यूचर में या पास्ट में रखना चाहता है। यस और नो? या तो वो चाहता है कि हम फ्यूचर में रहें या फिर पास्ट में रहें। लेकिन ब्रेन ट्रेनिंग के बाद ब्रेन इस तरीके से ट्रेन हो जाता है कि वो पूरा का पूरा प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा। मुझे बताइए, आपके बच्चों का रिजल्ट अमेजिंग आएगा अगर बच्चे प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाएंगे। सब हाँ हाँ है ना? हैंड रेस करें। वेरी गुड। अगर बच्चे का ब्रेन अभी जैसे आप सब लोग यहाँ हैं, लेकिन मैं 100% अश्योर हूँ कि आपका जो ब्रेन होगा, या तो वो पास्ट की कोई बात लेकर चिंता में रहेगा, ऐसा हो गया, या फिर वो फ्यूचर को लेकर परेशान रहेगा। हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते और इस वजह से हम भी परेशान रहते हैं और हमारे बच्चे भी परेशान रहते हैं। अग्री करते हैं? और 90% परेशान हम हमारे दिमाग में रहते हैं। हमारे दिमाग में जितना हमने उसको परेशानी ले रखा होता है, उतना रियलिटी में नहीं होता। यहाँ तक बात समझ आई ब्रेन की? तो कितने लोग अभी यहाँ अब प्रेजेंट मोमेंट में हैं? आप सब लोग हैं? यस और नो? हाँ है ना? एनर्जी लाउड है। यस और नो? सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है। यस और नो? वेरी गुड। अब आ गए प्रेजेंट मोमेंट में, हमें ये पता लग गया। अब दूसरी चीज, एक और चीज जो ब्रेन हमारा चाहता है ना, वो चाहता है कि हमें कभी कोई तकलीफ ना हो, हमें कभी कोई तकलीफ ना हो। इसका एग्जांपल समझते हैं। तकलीफ कब होगा हमें? जब हम यहाँ पर बैठे हैं और हम कैसे बैठे हैं। ये क्या पोजीशन है? ये क्या चाहता है ब्रेन? क्या चाहता है? हमें तकलीफ ना हो। लेकिन ब्रेन चाहता है कि हम परेशान ना हो, लेकिन सही पोजीशन क्या है? ये है यस और नो? जब हमारी बॉडी इस पोजीशन में होती है तो सबसे ज्यादा हम सीखते हैं। समझ आया? हम जो भी पढ़ेंगे, आज जो भी जानेंगे, उससे बच्चे की रिजल्ट में बहुत इंप्रूवमेंट आना चाहिए। उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। वापस से समझते हैं। बहुत बार पेरेंट्स मुझे बोलते हैं, बच्चा पढ़ता तो है लेकिन उसे याद नहीं होता। वो इंटेलिजेंट है लेकिन उसे याद नहीं होता। उसका सबसे पहला कारण है वो पढ़ता कैसे है। अगर वो लेट कर पढ़ रहा है, ऐसे बैठकर पढ़ रहा है, टेबल पे पैर रख रखे हैं, आसमान में पैर लटका रखे हैं, तो लर्निंग नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लर्निंग के लिए क्या है? बॉडी पोस्चर। ठीक है ना? बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ब्रेन क्या चाहेगा कि आप तो आराम से लेट कर पढ़ाई करो। ये समझ, ब्रेन चाहता ही नहीं कि आप कभी परेशान हो। इसीलिए ब्रेन क्या कहता है? चॉकलेट खाना है। चॉकलेट कौन कौन खाना चाहता है? 100 वेरी गुड। पिज्जा कौन खाना चाहता है? बर्गर कौन खाना चाहता है? पकोड़े, जंक फूड कौन खाना चाहता है? यानी ब्रेन क्या चाह रहा है? ब्रेन वही चीज चाह रहा है जो आपको अच्छा लगे, लेकिन वो अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है वो आज हम समझेंगे। यहाँ तक समझ आया? तो ब्रेन तो चाहता ही नहीं कि आपको परेशानी हो। ब्रेन तो चाहता है आपको कोई परेशानी हो। क्योंकि ब्रेन को परेशानी हो गई ना, तो पता है क्या प्रॉब्लम होगी? अगर ब्रेन परेशान हो गए तो आप इंडिया में टॉप आ जाएंगे। मतलब अगर आपका ब्रेन परेशान होने लग गया, यानी उसको परेशानी होना शुरू हो गई, तो आप बहुत सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो कितने बच्चे आज ये प्रॉमिस करके जाएंगे कि हम अपने ब्रेन को परेशान करेंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे? प्लीज रेज योर हैंड। जैसा कि कहा था, एवरी चाइल्ड विल गेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आए, आज आपकी एक बहुत बड़ी जीत हुई है। कैसे? क्योंकि जब भी शिक्षा पर कोई सेमिनार होता है तो
आपको क्या नजर आएगा, मुश्किल होता है। अगर आज आपके पास कॉल आए कि चलो कल पढ़ाई पर सेशन, कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि पढ़ाई बोरिंग है। आपने भी किया तब भी बोरिंग था, आज बच्चे पढ़ते हैं तब भी बोरिंग है, मानते हैं इस बात को। लेकिन आपके बच्चे आपसे जिद करके आपको यहाँ पर लाए, ये शो करता है कि आपके बच्चे सही और गलत जानते हैं। प्लीज क्लैप फॉर देम, जितने भी पेरेंट्स हैं। ये एक्टिविटी ये शो करती है कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं, आपके बच्चे चाहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आज कनेक्ट हुए। आगे बढ़ते हैं। महिमा मैम, यस, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। ये तो चलो मेरा एक जनरल नॉलेज था। अब जितने भी बहरमपुर के पेरेंट्स हैं वो एक एक थोड़ा थोड़ा मुझे बताएंगे प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम के सलूशन पे ही हम बात करेंगे। बताएं, माइक दे दीजिए। आप क्यों इस सेमिनार में आए और क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं एज अ पेरेंट? हेलो, यस, हाँ, हैंड रेज कीजिए और बताएं एज अ पेरेंट आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिससे मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। मुझे सिर्फ एक पेपर और चाहिएगा, लाइन पेन लीजिए। हाँ, तो सर आपने कहा जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। वेरी गुड, और बताइए। यस, वो सर बताना चाहेंगे। लेकिन वो अपने मर्जी से पढ़ाई करते हैं, उसका टाइम लेवल नहीं रखते और मैथमेटिकल फोकस नहीं रहता है। क्या कह रहे हैं, वो समझा नहीं। वो पढ़ाई करते हैं लेकिन वो उसका टाइम लेवल रहता है, लेकिन वो अपने मर्जी से पढ़ाई करते हैं। अच्छा, मतलब जब मन आएगा तभी पढ़ेंगे। जी, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी रहता है उनका। ओके, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। और पढ़ाई भी अपनी मर्जी से करते हैं, यानी जब उन्हें कहेंगे तभी पढ़ेंगे, जी, वरना नहीं पढ़ते हैं। जी, ओके, और मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे और जितना खुलकर बताएंगे उतना मेरे लिए लिखने में बहुत जोर आता है, लिखना नहीं चाहते, स्लो लिखते हैं। याद सब कुछ हो जाता है लेकिन स्लो लिखते हैं। ओके, वेरी गुड। और वो पढ़ाई में अच्छी है पर उसको डांट करने से नहीं पढ़ती है, वरना नहीं पढ़ती है। डांटने पर ही पढ़ती है। वेरी गुड, यस, नेक्स्ट। पढ़ाई करते तो टाइमिंग जो 1 घंटे 2 घंटे से 15 मिनट हाफ एन आवर बाद कोर्स खत्म हो, क्लोज कर दो। वेरी गुड, एक सेकेंड। अभी सश्मिता मैम, हम इन 5 क्वेश्चन पे आंसर। सबसे पहली चीज है कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन पे हम बात करेंगे, ध्यान नहीं देते। हाँ, एक बार आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कितने पेरेंट्स ये बात कहेंगे कि कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, हैंड रेज कीजिए, यानी ध्यान नहीं देते हैं। वेरी गुड। अब इस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात शेयर करता हूँ, आपको बहुत बहुत मजा आएगा। आखिर कॉन्सेंट्रेशन है क्या? बचपन से हम सबको ये सुनने को मिला है, ध्यान से पढ़ो, सुना है, ध्यान से बैठो, ध्यान से खाना खाओ, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से जाना, ध्यान से वो करना, ध्यान से वो करना, ध्यान। ऐसा बोला है, ऐसा ना हो। बट क्या कभी किसी ने हमें सिखाया ध्यान करना कैसे, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट? हमें हमेशा बोला जरूर है कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करो, कॉन्सेंट्रेट करके ये करो, कॉन्सेंट्रेट करके वो करो। बट क्या हमें कभी कॉन्सेंट्रेशन सिखाया?
अगर जब हमें कंसंट्रेशन सिखाया ही नहीं तो हम कैसे अच्छे होंगे कंसंट्रेशन? ठीक है, ये एक पॉइंट है। यानी हमें क्या सिखाया है? हमें सिर्फ बोला है कि ध्यान से ये करो, ध्यान से वो करो। साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन ब्रेन तो ट्रेनिंग ही नहीं दिया। जब हम वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि इसको यूज कैसे करना है, या फिर एक ट्रेनर आता है। लेकिन जब हमारा ब्रेन मिला, हमें ट्रेनिंग ही नहीं मिला ब्रेन का, तो हम कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? अग्री करते हैं इस बात पे? अब दूसरी बात, जब भी बच्चे मोबाइल चला रहे होते हैं, दो सिचुएशन लेते हैं, बच्चे मोबाइल चला रहे हैं और एक सिचुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं। जब बच्चे मोबाइल चला रहे होते हैं और आप चिल्लाकर बोलते हैं, चिट्टू बेटा खाना खा लो, क्या उसे सुनाई देता है? नहीं देता है। उसका कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई होता है कि आप कितना भी चिल्ला लो उसे सुनाई नहीं देता, ऐसा नहीं। लेकिन जब बच्चे के हाथ में किताब होती है और आप उसे मन में भी याद करते हैं, तो वो आपकी तरफ आकर बोलता है, मम्मी बुलाया, ऐसा नो। अग्री करते हैं, ऐसा नो? तो इससे एक बात समझ आ गई कि कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा नो? कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट बेस्ट फ्रेंड है। क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। अब दूसरी चीज, यहाँ पर हमें एक चीज समझ आ गई। अब बात करते हैं, आप में से कितने फादर हैं जो क्रिकेट मैच देखते हैं? देखते हैं? जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं तब हमारा कंसंट्रेशन लेवल पहली बॉल के साथ बढ़ता जाता है, ऐसा नो? और लास्ट तक आता है तो बोलते हैं सचिन को ऐसे शॉट मारना चाहिए, ऐसा नो? पहली बॉल आया, हमने देखा बॉल उसकी छूट रही है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज हमारे अंदर चेंज आ रहा है, ऐसा नो? तो तब हमारा कंसंट्रेशन लेवल मैक्सिमम होता है, ऐसा नो? तो ऐसा क्या होता है कि जब किताब खुलती है तभी ये बीमारी शुरू हो जाती है कंसंट्रेशन की। आप मोबाइल ले लीजिए, अभी इमेजिन करो हर बच्चे को मोबाइल मिल जाए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगले 6 घंटे आपको ये परेशानी मिलेगी, ऐसा नो? अग्री करते हैं? क्यों? ऐसा नहीं उनका ब्रेन सीखना नहीं चाह रहा, और आप 6 घंटे किताब देके देखो, आप बोलो ये लो 6 घंटे किताब दो, बस सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। लेकिन असली रिजल्ट किससे मिलेगा? किताब से ही मिलेगा। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है। तो कंसंट्रेशन वाली बात समझ आ गई आप सबको? तो आगे से आपको ये नहीं बोलना है कि हमारे बच्चे का कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट आर बेस्ट फ्रेंड। क्या है? सब लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट आर बेस्ट फ्रेंड। आपका भी जब इंटरेस्ट होता है तब आप ध्यान से सुनते हैं, यस और नो? जितने भी हस्बैंड यहाँ पर हैं, जब उनकी वाइफ उनको कुछ बोल रही होती है तो आपका कंसंट्रेशन हाई होता है, लो होता है? लो होता है, यस और नो? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन रिमेंबर, जिस दिन शादी हुई थी उसके अगले दिन कंसंट्रेशन हाई लेवल पे था, यस और नो? तो कंसंट्रेशन समझ आया? कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट आर बेस्ट। तो अब हमें क्या करना है एज अ पेरेंट? हमें कुछ ऐसा करना है कि बच्चों का कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट कनेक्ट हो जाए। दूसरी चीज, टाइम, लेवल और मैथमेटिक्स। टाइम अगेन जैसे सर ने बोला था कि वो अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, जब उनका मन होगा तभी पढ़ाई करेंगे। अगेन ये भी किससे कनेक्ट हो गया? कंसंट्रेशन से कनेक्ट हो गया। कंसंट्रेशन यानी मोबाइल दे दो, 12 बजे भी देखना शुरू कर देंगे, सुबह 6 बजे भी देखना शुरू कर देंगे, 4 बजे भी देखना शुरू कर देंगे। पढ़ाई दे दो, 8 बजे नींद आना शुरू हो जाएगी, पेट दुखना शुरू हो जाएगा, अजीब सा लगेगा, ऐसा ना? अगर हम पढ़ाई को अपनी लाइफ से हटा दें, बच्चों की लाइफ से हटा दें, तो बताइए आपका और आपके बच्चों का रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? इमेजिन कीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना? तो टाइम लेवल हो गया। तीसरा पॉइंट आपने बताया, स्लो लिखते हैं, लिखना नहीं चाहते। अब लिखना क्यों नहीं चाह रहे? समझ तो आ गया। लिखना इसलिए नहीं चाह रहे
क्योंकि उनको क्या आता है, आलस आता है। क्या आता है? लेजीनेस डेवलप हो गया है। लेकिन ये उंगलियां अब कब चलती है, किसके लिए चलती है? रील को स्क्रॉल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ब्रेन जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेन हो रहा है, हमें उसे राइट डायरेक्शन में ट्रेनिंग लाना पड़ेगा। और किसी ने बोला डांटने पर ही पढ़ते हैं। यस, अब डांटने पर ही पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? डांटने पर ही क्यों पढ़ते हैं? यानी उन्हें डांटना पड़ता है कि पढ़ने बैठो, पढ़ना पड़ेगा। क्यों? ऐसे क्या कारण है कि उन पर डांटना और चिल्लाना पड़ता है तभी पढ़ते हैं? इसके दो मेन रीजन है जो मुझे समझ आए। सबसे पहला रीजन है कि उनको पता नहीं है कि पढ़ाई करने से होगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इससे उनको भी ये समझ नहीं है कि पढ़ाई करने से होगा। और दूसरी चीज, जब हमारे जीवन में गोल नहीं होता है, GOAL, तो समझ नहीं आता करना क्या है। इसको ऐसे समझते हैं, एक बार भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ फुटबॉल का। भारत ने भी बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा खेला, फुटबॉल खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेला। एंड में कौन जीता बताइए? इंडिया। ओके, कोई भी नहीं जीता। बताए क्यों? क्योंकि उस फुटबॉल का, बताइए लाउडर, आवाज नहीं आई। दोनों ने अच्छा खेला, फिर भी क्यों नहीं जीते? और सर एक बार बैक स्टेज आएंगे, बैक स्टेज। बताओ क्यों नहीं जीता? हाँ बताइए ना। डॉक्टर बनना चाहते हैं पहले? यस। टीचर, अरे वाह। साइंटिस्ट, वेरी गुड। डॉक्टर, डॉक्टर बनना है, वेरी गुड। यस। IAS, मोदी बनना है, पुलिस, अच्छा, आर्टिस्ट, पुलिस, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, वेरी गुड। डॉक्टर, यस, IAS, वेरी गुड। शादी करना है, बिजनेसमैन, यस। आर्मी ऑफिसर, वेरी गुड। टीचर, अरे वाह, वेरी गुड, यस। बताओ। टीचर, वेरी गुड। हाँ, क्या बनना है? आवाज से लाउड बोले। टीचर, आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, पुलिसमैन, आर्टिस्ट, वेरी गुड। यस, लास्ट में पूछिए एक बार। Can I get the mic? करने क्या वाले हैं? यस, वेरी गुड। टीचर, वेरी गुड। IPS, वेरी गुड। पुलिस। एक सेकंड, पुलिस क्यों बनना चाहते हैं आप? सब ये मैक्सिमम सारे बच्चे पुलिस क्यों बनना चाहते हैं? टीचर्स को जेल में तो नहीं डाल दोगे कि बहुत सारा होमवर्क किया था ना, अब बस। यस, पुलिस क्यों बनना चाहते हैं? यस, एग्रीकल्चर ऑफिसर।
एग्रीकल्चर ऑफिसर, वेरी गुड। पुलिस। पुलिस। क्यों? चोरों को जेल में डालूंगी। वेरी गुड। आईएएस। ये क्या होता है? आईएएस ऑफिसर। ये क्या होता क्या है? क्या करता है आईएएस ऑफिसर? एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, किस चीज का? आते। आते। ओके, वेरी गुड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन पावरफुल, बहुत मजा आएगा आपको। स्टार्ट कर दीजिए मैम, स्टार्ट। नेक्स्ट, यस, एक वीडियो देखिए। जयपुर की छात्रा लावण्या लालवानी ने इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है और उन्होंने 173 तरह की लॉटरी विषय के नाम 3 मिनट 6 सेकंड में सुनाकर 100 सामान्य ज्ञान के सवालों के जवाब 2 मिनट से कम में देकर और प्रसिद्ध मंदिर एवं स्मारकों की पहचान 520 सेकंड में कर दी। इस 3 मिनट्स यानी आप जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये जयपुर में हैं, इस बच्ची ने 173 लॉजिक वर्ड्स याद करे हैं। यानी अगर आप पुलिस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनना चाहते हैं तो इस बच्ची ने इतनी मेहनत करी है। तो जितने लोगों ने आज गोल बताए हैं, सबसे पहले मोबाइल कम करना पड़ेगा, पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। मोबाइल कम, पढ़ाई ज्यादा, तो आपका भी नाम इस तरीके से मीडिया में आएगा। कितने बच्चे न्यूज चैनल में आना चाहते हैं? एड्रेस कीजिए कि आप पर न्यूज बने। अब जब आप पर न्यूज कब बनेगी? जब आप क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। देखो, एक तरीका ये भी है कि घर जाओ, आराम से रेस्ट करते हुए टीवी देखो, लेकिन आपने एक डिसीजन लिया आज इस सेशन को अटेंड करने का, और सेशन अटेंड करने में क्या होगा? ब्रेन क्या कहेगा कई बार, यार घर चलते हैं, आराम करेंगे। लेकिन जो पावरफुल ब्रेन होगा वो बोलेगा चुप कर ब्रेन, मैं तो यहाँ पर सीखूंगा। सो विल यू लर्न? यस और नो? यस और नो? वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड। रिकॉर्ड बना नाम रोशन किया। जयपुर के साइंस पार्क में इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से विशेष विश्व स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। उसमें अनन्या ने ये उपलब्धि हासिल की। अनन्या ने मात्र 6 मिनट 56 सेकंड में विश्व के विभिन्न देशों की राजधानियों, राष्ट्रीय ध्वज, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों, देश के सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के नाम तक वर्तमान केंद्रीय बजट की जानकारी पुस्तक सभी को हैरत में डाल दिया। वैश्विक परिवार की स्कूल की छात्रा अनन्या की इस उपलब्धि पर उन्हें देश भर से चयनित 25 लोगों के साथ विशेष अवार्ड सेरेमनी में सम्मानित किया। इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड। यस, यस, बताइए कोई भी कंट्री, ब्राजील, और कंट्रीज के नाम बताइए। अर्जेंटीना, वेरी गुड। चाइना, वेरी गुड। इस बच्ची ने 195 कंट्रीज के सबके नाम एक साथ बोलकर रिकॉर्ड बनाया। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लाइक दैट। 195 कंट्रीज के नाम 2 मिनट 34 सेकंड्स में बताया अपनी ब्रेन पावर से, और उसी के साथ कैपिटल भी बताया। नेक्स्ट, नेक्स्ट। बालिका जैन ने अपनी असाधारण प्रतिभा से बड़ी उपलब्धि हासिल की। इतनी कम उम्र में बालिका ने रसायन विज्ञान के पीरियोडिक टेबल के सभी 118 रासायनिक। इन्होंने 118 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जानते हैं? 6 वर्षीय पीरियोडिक टेबल क्या होता है? एलिमेंट्स का होता है। उस 6 साल की बच्ची ने पीरियोडिक टेबल याद करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कितने बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड। अभी मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं। एक बच्ची ने 173 लॉजी वर्ड्स याद करे 3 मिनट में। एक बच्ची ने सारी कंट्री और कैपिटल्स को याद किया, और इस बच्ची ने 118 पीरियोडिक एलिमेंट्स। नेक्स्ट, ये
जो स्मार्ट पर्सन देखने के लिए मैं हूँ. सो माय नेम इज यश भट्ट. नेक्स्ट, अनलॉक द सुपर पावर ऑफ ब्रेन. अब हम क्या करेंगे, बच्चों ने जो शक्तियाँ यूज करी उसको हम सीखने वाले हैं. बट आप में से कोई ऐसा है जिसे सारी वेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया पता होगा, यानी वेस्ट में कौन सी स्टेट्स हैं उनके बारे में पता होगा. हैंड रेस कीजिए. वेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया आपको पता है? वेस्ट स्टेट आपको पता है? आ जाओ, इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ. वेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया किसको पता है? आ जाओ. यस सर, आप भी आ जाइए, आ जाइए, स्टेज पर आ जाइए. ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया किसको पता है? ईस्ट स्टेट्स यानी जो ईस्ट में है. यस, आ जाओ, आप भी आ जाओ. नॉर्थ स्टेट्स किसको पता है? साउथ स्टेट्स किसको पता है? वो स्टेट्स पे आ जाओ. अभी हम कुछ लर्न करने वाले हैं, जितने भी बच्चे जल्दी आ गए. हाँ, ईस्ट बताओ. ओडिशा, झारखंड, बिहार, असम, आउट स्टेट्स और साउथ स्टेट्स ऑफ इंडिया. तमिलनाडु, वेरी गुड. आंध्र प्रदेश, Next, very good, very good. Yes. East states of India. Me or no? Yes. असम, No. अच्छा, साउथ स्टेट्स ऑफ इंडिया बताओ. आंध्र प्रदेश, वेरी गुड, तमिलनाडु, वेरी गुड, केरला, वेरी गुड. गोवा, गोवा नहीं है. वेरी गुड, वेल ट्राई. नेक्स्ट. यस, साउथ स्टेट्स ऑफ इंडिया. कर्नाटक, केरला, कौन सी क्लास में आप? फोर्थ स्टैंडर्ड. यस, आप लीजिए. साउथ स्टेट्स ऑफ इंडिया. So Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, and How many states you have shared? 4. Very good. Well done. Yes. East states of India. Arunachal Pradesh, East, only east, not northeast. Very good. Very good. Yes. Next. North states of India. Yes. Odisha, North. Kashmir, No. Jammu Kashmir is a union territory. This is union territory. Very good. Haryana, Very good. Punjab, Very good. Okay. अभी देखिए. Very good. हाँ. Yes. बताएं. Himachal Pradesh, Very good. Haryana, Very good. Uttar Pradesh, Punjab. जितने भी बच्चे हैं, जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप अपने ब्रेन में सर्च कर रहे थे, है ना? अगर मैं आपको एक ऐसा पावरफुल मेथड सिखाऊं अभी के अभी सारी स्टेट्स ऑफ इंडिया याद हो जाए हमेशा के लिए, तो क्या इस बात पर आप बिलीव करेंगे? सारी स्टेट्स याद करा दो. अभी हम क्या करेंगे, मेथड यूज करेंगे, उसके बेसिस पे सारी स्टेट्स याद करेंगे, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा. ठीक है ना? रेडी हैं आप सब लोग? देखो,
सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया कैट के लिए क्या करना है, आपको एक मेथड यूज करना है, ठीक है। जितने भी बच्चे यहाँ खड़े हैं और जो यहाँ पर बैठे रहते हैं, सदर्न स्टेट्स बोलते हैं, आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए कैट। क्या आना चाहिए? कैट। हिंदी सबको आता है? वेरी गुड। कैट, कैन यू इमेजिन अ कैट? कैट नजर आ रही है? अब इमेजिन करो, आपने सबने, आंखें बंद करो सबने, आपने कैट को करेला दिया। क्या दिया? जैसे आपने उस कैट को करेला खिलाया, उसने नाटक करना शुरू कर दिया। फिर आपने उसको अंडा खिला दिया कि भाई अंडा खा लो। अंडा खाने के बाद आपने बोला अब मिलने चलते हैं जयेश सर से और महिमा मैम से जो बहरमपुर आए हैं। जैसे ही आप मिलने लगे, उस कैट ने तेल लगाकर गाना गाना शुरू कर दिया। अपनी पूरी बॉडी में तेल लगाया और गाना शुरू कर दिया। अब ओपन योर आईज। अब जैसे ही आपसे कोई सदर्न स्टेट पूछेगा तो आपके दिमाग में वर्ड क्या आएगा? कैट। क्या आएगा? अब कैट से, कैट को आपने क्या खिलाया था? करेला। उससे वो क्या करने लगी? नाटक से क्या बनाया? कर्नाटका। और फिर आपने उसको क्या दिया? अंडा। अंडा से क्या बनाया? आंध्र प्रदेश। और फिर उसके बाद मिलने गए जयेश सर से, मिल से क्या बनाया? मिल। तमिल। क्या बनाया? तमिलनाडु। और फिर वो कैट क्या कर रही थी? तेल लगा के क्या कर रही थी? तो क्या बन गया? तेलंगाना बन गया। अब सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया कौन कौन सी होती है? कौन बताएगा? कैसे बताओगे? यस बताओ सब। सबसे पहले केरला, उसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सबसे पहले तो कैट को वर्ड यूज करके बताओ तो इजी रहेगा। कैट, हाँ। कैट ने सबसे पहले करेला खाया। हाँ, बस स्टेट्स के नाम बता दो। कैसे? कैसे? करेला, कैसा? वेरी गुड। फिर कैसे? फिर वापस से कैसे? कर्नाटक। वेरी गुड। फिर ऐसे? उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना। वेरी गुड। प्लीज स्टार्ट। जब इससे पहले सवाल किया था तब क्या हो रहा था? कहीं ना कहीं से उस इंफॉर्मेशन को फोर्सफुली लाना पड़ रहा था, बट जैसे ही हमने उसको इमेज में बनाया, इजी रहा? यस और नो? यस। और सामने जो है यस। आप बताओ सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया वापस से क्या बोलेंगे? कर्नाटका, वेरी गुड। आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। तेलंगाना, वेरी गुड। केरला, वेरी गुड। तमिलनाडु। वेरी गुड। कैसे करा आपने? अभी स्टोरी से याद हो गया आपको? स्टोरी। वेरी गुड। वेरी गुड। याद हुआ है स्टोरी से? आप सबको याद हुआ है? ऐसा ना? ओके, नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। सारी स्टेट्स याद करा दो। याद हुआ आप सबको पेरेंट्स को भी? ऐसा ना? आज जब ये सेशन कंप्लीट हो तो सब लोग मेमोरी ट्रेनर बनने जाओ, जिससे आपको लर्न कराने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? नेक्स्ट। अब ले लेते हैं वेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। वेस्ट स्टेट्स किस चीज को पता है? वेस्ट। वेरी गुड, गुड, ग्रेट। वेस्ट स्टेट्स पता है आपको? ट्राई करो। स्टैंडर्ड आपको वेस्ट स्टेट। वेस्ट स्टेट्स महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पंजाब, कंफ्यूजन हो जाता है ना, बस इतना सा याद रखना है, इससे आपको याद रहेगी वेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। आप सब लोग जब उठते हैं, जैसा कि मैं आपकी शक्ल देखकर
क्या डायलॉग मिलता है? मेरी मम्मी बार बार पूछते हैं कि जा बेटा, पर मैं सोता रहता हूँ। फिर एक टाइम दिया के पास मुझे सोना खा लेते फिर लेके अच्छा, ओके, वेरी गुड। सो कैसे उठाया जाता है? राजा बेटा या राजा बेटी? अब आपकी मम्मी पापा ने आपको ऐसे उठाया, गुड गुड मॉर्निंग राजा बेटा। क्या बोलना है? गुड गुड मॉर्निंग राजा बेटे। अब गुड गुड मॉर्निंग से जी से हमने क्या बनाया? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, और राजा से क्या बना? राजस्थान। क्लियर रहेगा? अब गुड गुड मॉर्निंग क्यों है? क्योंकि आप सबको उठा रहे हैं। तो ऐसे ही आपको कौन सी स्टेट याद होगी? वेस्ट स्टेट याद रहेगी। सबसे पहले मम्मी ने क्या बोला? क्या रहेंगी? वेस्ट स्टेट, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान। वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर देम। थैंक यू सो मच। अब वापस बुलाऊंगा। थैंक यू। कैसा लगेगा? इमेजिन कीजिए एक जायंट एलिफेंट रेड शू पहन के डांस कर रहा है स्कूल रूट पे। चेंज। क्या वो ऐसा लगेगा? यस और नो? नेक्स्ट, इमेजिन करें लायन के बारे में। इमेजिन अ लायन राइडिंग अ स्केटबोर्ड थ्रू योर स्कूल कॉरिडोर। कैसा लगेगा? इमेजिन। नेक्स्ट, imagine a monkey driving a yellow bus filled with bananas to your classroom. Next, donkey नहीं, गधा नहीं। No. Very good. Yes. Speak louder. क्या? Jellyfish. Very good. Yes. Jellyfish. Next answer. Jellyfish. Jellyfish का सुनाने होगा। Next. Which animal has many brains? Yes. Octopus. Octopus के पास कितने ब्रेन होते हैं? 8. Very good. वैसे ऑक्टोपस से भी ज्यादा ब्रेन होते हैं किसी के पास। Which animal has many brains? ऑक्टोपस के आगे भी होते हैं। सोचिए। आंसर, लीच। लीच हैज मोर देन 25 ब्रेन्स। 25 से ज्यादा ब्रेन होते हैं। और आज मैं भी आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका एक ही ब्रेन बहुत पावरफुल होने वाला है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो आशीष सर, मैंने आपके साथ कुछ मेमोरी टेक्निक शेयर किया। कमाल की। आपको कैसा लगा मेमोरी टेक्निक? सर जैसे हम लोग स्कूल मॉर्निंग्स के तो पहले चीज़ ऐसी होती है साइंस में सारे सब्जेक्ट में तो पड़ती है बहुत ज़्यादा। कितने बच्चे सर को जानते हैं आशीष सर को? सो जब हमने इनके साथ सेशन किया तो इन्होंने क्या बोला वो देखते हैं। यस, इससे बैक। यस, तो आशीष सर, मैंने आपके साथ कुछ मेमोरी टेक्निक शेयर किया। कमाल की। आपको कैसा लगा मेमोरी टेक्निक? सर जैसे हम लोग स्कूल मॉर्निंग्स के तो पहले चीज़ ऐसी होती है साइंस में सारे सब्जेक्ट में याद करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। और अब क्या है कि बच्चे के पास लिमिटेड समय है, लिमिटेड मेमोरी है, तो मॉर्निंग से बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं चीज़ों को जल्दी याद करने के। जैसे अभी भी सर ने चीज़ याद नहीं वो शेयर करना चाहूँगा। तो हमने मुझे पूछा कि कोयला सबसे पहले काम मिला गया, तो मुझे इसको इतना अप्रिशिएट किया है। नेक्स्ट, तो किस तरीके से हमारी वर्कशॉप होती है उसको देखते हैं। यस, मोबाइल पर गेम खेलते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन कैसा होता है? और जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन कैसा होता है? हर कोशिश में हो बार बार कर कर यहाँ को बार
नेक्स्ट यस स्टार्ट नेक्स्ट Hello everyone, today I attended this workshop. It was the best session of the workshop I attended today. Like I want to say that Mahima ma'am and Jayesh sir, they both were the cheerful and the best teachers I saw in my whole life. They made me understand many things in my studies, so I want to say thank you to both the teachers. नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे अरे यार ये डायग्राम तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है मेरे को। काश कोई ऐसी ट्रिक होती इसको मैं 1 मिनट में याद कर लेता। नेक्स्ट 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 अब नाउ आई वांट दैट नंबर ओके। तो यहाँ पे सबको समझ आया। अब हम एक बहुत पावरफुल गेम खेलने वाले हैं, नंबर गेम। वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है और वहाँ से आपको समझ आएगा कैसे हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा अलाउ यस फ्रॉम दिस इससे ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर, यस यस इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंस क्विकली। यहाँ तक सही लग रहा है, सब बच्चों को समझ आया कि हम क्या मेथड यूज कर रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंस, जहाँ जहाँ साइंस का रोल आया वहाँ वहाँ हमारा काम आसान हो गया है। जयपुर से बैरकपुर आने के 4 रास्ते हैं। पहला ट्रेन, दूसरा प्लेन, तीसरा कार और चौथा पैदल। हम कैसे आए हैं आपके पास? प्लेन एंड कार, प्लेन और कार से आए। आपको लगता है कि हम पैदल आए, पैदल आ सकते हैं? यस और नो? इम्पॉसिबल है? ओके, बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए कितने टूल्स हैं उसको समझते हैं। गाड़ी में कितने पहिए होते हैं? 4 तो नहीं होते, 5 कैसे? स्टेपनी, वेरी गुड, स्टेपनी होता है यस और नो? गाड़ी कितने पहियों से चलती है? 4। अगर गाड़ी का टायर पंचर हो तो गाड़ी गैराज में जाएगी या डेस्टिनेशन पे जाएगी? गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, गैराज वाले को बुलाना पड़ेगा, ठीक है ना? अब ऐसे पढ़ने के 4 टूल्स होते हैं। पहला रीडिंग। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको रीड करना आता है? ट्रेस कीजिए। कितने बच्चे हैं जिनको लिखना आता है? कितने बच्चे हैं जिन्हें समझ आता है? आपको समझ आया कि 12 बजे व्यंजन कला केंद्र में प्रोग्राम होगा तो आप सब लोग आ गए, यानी आपको समझ सी। बट कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लर्न करना आता है? लर्न करने के लिए हम सिर्फ एक ही टेक्निक यूज करते हैं। कौन सा? रट्टा मार। कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? रट्टा मार। लेकिन आज हम एक पावरफुल टेक्निक सीखने वाले हैं, याद कैसे करना है। नेक्स्ट, इमेजिन कीजिए एक पायलट प्लेन चला रहा है और अचानक से प्लेन चलाना भूल जाए। ऐसा पायलट अच्छा है या खतरनाक है? और उसमें आपके सारे टीचर्स बैठे हो तो कैसी बात है? तो अच्छा है, सारे टीचर्स को बैठा दो। नेक्स्ट, इमेजिन कीजिए आप एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बोला डॉक्टर मेरा सर दुख रहा है, दवाई दे दो। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है दवाई दे देता हूँ, लेकिन दवाई का नाम क्या है? भूल गया। ऐसा डॉक्टर अच्छा है खतरनाक है? तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जिसे आप भूल जाते हैं? ठीक है, उस पढ़ाई। नेक्स्ट, क्या आपके बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं पढ़ते वक्त? ऐसा बिहेव करते हैं? ऐसा नो?
तो एक बार एक स्कूल में मैं सेशन ले रहा था, तो मैंने पूछा कि क्या आपके बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं? तो एक बच्चा खड़ा हुआ बोला, नो आई डोंट बिहेव लाइक दिस। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोले सर मैं पढ़ता ही नहीं तो बिहेव क्या करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट हाँ इसको अब एक गेम खेलते हैं, बहुत अमेजिंग सा गेम है। आपके घर में कितने बच्चे हैं जो मोबाइल यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं? सब लोग करते हैं। तो आपकी मम्मी आपका टीवी कैसे बंद कराती है, मोबाइल कैसे बंद कराती है? आपके घर में टीवी कैसे बंद होता है? स्विच ऑफ कर देती है मम्मी और यस डांट लगाती है और रिमोट छीन कर ले जाती है। कैसे बंद होता है? मैं बताओ। मम्मी मोबाइल खींच के ले जाती तो आपको कैसा लगता है? अच्छा है बुरा? अच्छा लगता है? गुस्सा आता है? ओके नेक्स्ट यस। वेरी गुड। और आपकी मम्मी क्या करती है? यस पीछे पीछे पता तो करिए कैसे बंद होता है टीवी? मम्मी पूरा डायरेक्ट स्विच ऑफ कर देती है। डायरेक्ट स्विच ऑफ कर देती है। वेरी गुड। और यस एट द बैक माइंड कीजिए कैसे टीवी बंद होता है, ये समझना है मुझे। बताओ। मेरी मम्मी छीन के ले जाती है रिमोट। छीन के ले जाती है। वेरी गुड। रिमोट छीन के ले जाती है। वेरी गुड। नेक्स्ट यस। और कोई बताना चाहेगा कैसे बंद होता है? वेरी गुड। मेरी मम्मी स्विच बंद कर देती है। स्विच बंद कर देती है। वेरी गुड। वाईफाई ऑफ कर देती है। वाईफाई ऑफ कर देती है। वेरी गुड। मेरी मम्मी वार्निंग देती है बंद करने के लिए, नहीं तो मारती है। यस आप बताएं। वेरी गुड। जिससे मेरी मम्मी ऐसे बंद कर देती कि मुझे पता ही ना चले। पता ही ना चले। वेरी गुड। आपको मालूम है मेरे घर पे टीवी कैसे बंद होता था? जब मेरी मम्मी चालू होती थी और टीवी बंद। अब एज ए पेरेंट हम तीन चीजें करते हैं। सबसे पहली चीज क्या करते हैं? बच्चों को प्यार से समझाते हैं बेटा मोबाइल दे दो, जब भी बच्चे मोबाइल नहीं देते हैं। दूसरा मेथड यानी पहला मेथड हम करते हैं बच्चे को क्या करते हैं? रोकते हैं, बेटा मोबाइल यूज मत करो या सुनो। रोकने वाला मेथड फेल हो जाता है तो हम टोकना शुरू कर देते हैं। टोकते हैं या सुनो बेटा फोन यूज मत करो ये, ठीक है। जब रोकने और टोकने पे भी काम नहीं होता और छीनते फिर तीसरा मेथड यूज करते हैं, छीनते हैं। छीनने पर भी काम नहीं होता, रोकने टोकने पर भी काम नहीं होता, छीनने पर भी काम नहीं होता। तो छीनने रोकने टोकने के बाद फाइनल मेथड जो यूज करते हैं वो ठोकते हैं और ठोकने पर भी काम नहीं होता। ऐसा ना ऐसा होता है, ऐसा ना। अब हम सीखेंगे कैसे अपनी मेमोरी को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। और लास्ट में सबको एक बहुत अमेजिंग बोनस मिलने वाला है। जितने भी बच्चे हैं वर्थ ₹2000 यानी 2000 रुपीज वर्थ एक ऐसा बोनस मिलने वाला है सारे बच्चों को जो भी मेहनत में आज, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा इस वर्कशॉप में। पहला नंबर मैंने क्या लिख रखा है? 74। अब आपको भी मुझे 2 डिजिट का नंबर बताना है। बच्चों को हैंड रेस करके मैं उस नंबर को यहाँ पर लिखूंगा, बट मेक श्योर जो भी नंबर बता रहा है उसको ये नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि अपने इवेंट की सबसे पावरफुल एक्टिविटी है। रेडी आप सब लोग? माइक दे दीजिए जिनके पास भी माइक है, और फिर मैं आपको एक पावरफुल स्टोरी शेयर करूंगा। यस बताइए। 35 ओके लिख लीजिए जो भी। हाँ मैं जिसको यस वेट जिसके लिए मैं बोलूँ मैं उन्हीं को देना है ना अभी तो। हाँ
नंबर जो आपने बताया ना वो आपको याद रखना है 35। यस बताइए। 91. 91 वेरी गुड। मैं बताता हूँ किसको देना है। यस यस उनको दीजिए रेड कलर। यस 91 लिख दिया वेरी गुड। 99. 99 मार्क्स आए हैं। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट 99 यस। नेक्स्ट आप दीजिए इस बच्चे को दीजिए। यस 70. 70 ओके 70 कर दीजिए वेरी गुड। यस नेक्स्ट लाइन अगला नंबर लेते हैं। जिन्होंने भी नंबर बताए मेक श्योर आप लोग नंबर को याद रखें, ठीक है ना। चलो अगला नंबर। यस 85। नेक्स्ट नंबर लिखिए 85। ओके नेक्स्ट हम लेंगे कौन है जो आंसर देना चाहता है, बट मेक श्योर आपको वो नंबर्स याद हो। ये नंबर ले लेते हैं, इनसे ले लीजिए दिस रेड टी शर्ट। यस बोलिए कोई भी नंबर बोलो 2 डिजिट का बोलिए। 62 वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 62। इधर आ जाइए सस्मिता मैम, बच्चों का एक्साइटमेंट बहुत अच्छा है बट मेक श्योर आपको याद रखना है, ठीक है। 85 हाँ बताइए। 80 नेक्स्ट नंबर लिखिए 80 वेरी गुड। 80 हो गया। यस आप बताइए। हेलो बता 2 डिजिट नंबर बताइए। क्या 30 ओके नेक्स्ट नंबर लिखिए 30। 30 के बाद यस वेरी गुड। आई लव द एक्साइटमेंट। ऐसा करते हैं इस बच्चे को ले लीजिए। 81 नेक्स्ट नंबर लिखिए 81। नेक्स्ट साइड 8 के बाद अगला नंबर लेते हैं और जो भी नंबर बता रहे हैं याद रखना है कि आपने कौन सा नंबर बताया है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर लेते हैं और आपके लिए बहुत अमेजिंग सरप्राइज है नेक्स्ट संडे के लिए। ओके सर बोलने से नहीं होगा, मेरा नाम जयेश है। जयेश सर बोलने से। ओके नेक्स्ट नंबर लेते हैं इनसे लीजिए इस पर 55। नेक्स्ट नंबर लीजिए 55 वेरी गुड। अब अगला नंबर लेते हैं लास्ट में कौन है, सबको मौका मिलेगा, डोंट वरी। लास्ट में लीजिए सचिन नंबर, सबको मिलेगा, बहुत मजा आएगा आपको। वेट सबका नंबर आएगा। मजा आ रहा है आप लोगों को, सीखने को मिल रहा है। अभी ये एक्टिविटी यस लीजिए, हाँ इससे लीजिए। 55 के आगे 69 नेक्स्ट नंबर लीजिए। 62 हो गया बच्चा। 69 के बाद 62 ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको कोई और नंबर बताना पड़ेगा। 91 हो चुका है, कुछ और नंबर सभी बताइए। बच्चे ध्यान रखिए, रिपीट नहीं करना है, इसमें से डिफरेंट नंबर। 20 यस आप यस मैम एक बार आगे भी आते हैं। 20 हो गया। नेक्स्ट 20 हो गया। यस नंबर मिलेगा। एनर्जेटिक रहिए, हमें नंबर सिर्फ एक्टिविटी के लिए चाहिए, इससे हम नंबर ले रहे हैं। और नेक्स्ट नंबर ले लीजिए। इनसे ले लीजिए 45 45
नेक्स्ट नंबर ले लीजिए 45। वेरी गुड। सभी बच्चे जो भी नंबर बोले हैं याद रखना है, अपना नंबर अपना नंबर जरूर याद रखना है। वेरी गुड, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। मैं आपसे पूछने वाला हूँ इन नंबर्स का मीनिंग क्या है। यस, नेक्स्ट इन पिंक वाली से ले लीजिए 45 के बाद 68। वेरी गुड, 68 लीजिए। ओके, लास्ट, यस लास्ट में उसे ले लीजिए आप। अब सारे बच्चे अपनी सीट पे बैठ जाएं क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। जल्दी से बस 5 मिनट में आप सबसे नंबर लेने वाले हैं। All children, please go back to your seats. यस, अब हम नंबर लेंगे पेन। यस, पेरेंट्स में हैंड रेस कीजिए। अब पेरेंट्स का टर्न है। अच्छा चलो बताओ। यस 50 नंबर। यस 5050। वेरी गुड। नंबर 66 की बात बताइए। 66 के बाद 42 लिखिए। 42 के बाद 18 1880। लास्ट लिखिए 18 के बाद 18 के बाद आप बता दीजिए। बच्चों का एक्साइटमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी नंबर बता रहे हैं बस 79 लिख दीजिए। 18 के बाद 79, 18 के बाद 79। वेरी गुड। लास्ट लाइन, बस हम लास्ट लाइन लेंगे। 92 यस 92 72 लिख लीजिए। 72 उसके बाद 92 92 लिख दिया आप लोगों ने। 92 के बाद आप 37 साइलेंस। 92 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 37 37 लिखिए। 37 के बाद लिखिए। 37 के बाद लिखिए। यस 10 37 के बाद लिखिए 10 के बाद लास्ट 2 डिजिट नंबर 56 लिख दीजिए। बस डन। Thank you so much. All Thank you so much. please Sit go down. back to your seats. Thank you. Please move. इसको अब और भी अभी मिलेगा सर आपको देखिए। Please come on. Thank you. Go back to your seats, please. ओके, नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब जो गेम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हमें समझ आएगा कि नंबर्स का क्या वैल्यू है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नंबर्स का वैल्यू है यस और नो? सबसे ज्यादा वैल्यू नंबर्स का है। यस, यानी नंबर्स आएंगे तभी मैटर करेगा। अब मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ मैम आपसे। स्टैंड अप। आपको जो यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर्स लिखे हुए हैं इनको याद करना है और याद करने के बाद सुनाना है। कितना टाइम लगेगा? वन डे, 1 आवर, 1 आवर बाद आपका टेस्ट है। आपको ये सारे नंबर याद करना है। 1 आवर के बाद आपका टेस्ट है। सर हेलो, आपको ये सारे जो भी यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं इनको याद करना है और याद करने के बाद सुनाना है। कितना टाइम लेंगे? 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे बाद आपका टेस्ट लेंगे। वेरी गुड। लास्ट में बच्ची आप खड़े हो। यस सर, आपको जो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं इनको याद करना है और याद करके
स्टेज पे सुनाना है, कितना टाइम लगेगा? हाँ, कितना टाइम लगेगा? 1 आवर लगेगा? वेरी गुड, ठीक है। यस, आपको ये सारे नंबर्स को याद करना है और याद करके आपको सुनाना है। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे, लर्निंग पे। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्हें लर्न करने में प्रॉब्लम आती है? हैंड रेज कीजिए। लर्न करने में कितने बच्चों को प्रॉब्लम आती है? सबको आती है। याद करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? रट्टा मार। और एज अ पेरेंट हम क्या बोलते हैं बच्चों को याद करने के लिए? कैसे याद करना है? पेरेंट क्या बोलते हैं? क्या? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। और जो लर्न करने वाला था उसके लिए क्या कहते हैं? फोटो फिर मार दिए। क्या बोलते हैं? कैसे याद होगा? मैडम ये आई यस, प्रैक्टिस। और क्या मेथड यूज करते हैं अगर ये याद करना होता है? तो कोई भी क्वेश्चन आंसर याद करना होता है तो क्या बोलते हैं? तो कितनी बार लिखें आंसर को? 5 बार। ये मैडम कह रही कुछ भी याद ना हो तो 5 बार लिखें। वेरी गुड। और कैसे याद कराते हैं? यस, बताइए। 6 टाइम्स लिखो। और आप कैसे याद करते हैं? हाँ, समझना तो पड़ता है, लेकिन याद कैसे करते हैं आप लोग? यस बच्चा, बताइए। याद करते हैं, लिखते हैं और याद करते हैं। ओके, अब एक छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं सबका। आप सबको एक कैश प्राइज मिलेगा। एक क्वेश्चन है 5000 रुपीज। रेडी है कैसे? अगले 2 मिनट में आपको ये सारे नंबर्स को याद करना है और याद करने के बाद जो भी शेष बताएगा उसको अभी हमारी तरफ से 5000 का कैश मिलेगा। चेक करते हैं आप लोगों का मेमोरी कैसा है। और 2 मिनट्स का जो टाइमर है वो कौन स्टार्ट करेगा? हम आप करेंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। रेडी आप लोग? कैसा ना? 3, 2, 1 स्टार्ट। सेकेंड्स होगा, जल्दी रीड एंड रिपीट। सेकेंड्स होगा, फास्ट। 5000 जैसे टाइम को आप बता दीजिए। क्विकली रीड एंड रिपीट। लिख भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं इन सारे नंबर्स को। टाइम अप। 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स लैफ्ट। क्विकली। Let's see. Okay, time up. Done? Up. Okay. याद हुआ किसी को? डिफिकल्ट था या नो? हम क्या मेथड यूज कर रहे थे? हम बार बार क्या कर रहे थे?
रीड कर रहे थे और रिपीट कर रहे थे। अब ये इंपॉर्टेंट बात है जिसे हमें समझना है, क्योंकि जो सेशन है वो मेमोरी पर ही है और हम इन नंबर्स को याद नहीं कर पाए। सबसे आसान क्या होता है ब्रेन के लिए आपको? वेरी गुड, आपका टेस्ट चाहिए है ना, रेडी। सबसे आसान क्या होता है याद करना? सबसे आसान क्या होता है याद करना? मूवीज। क्या आसान होता है? मूवीज को याद करना आसान होता है। उससे ज्यादा आसान क्या होता है? इमेजेस को याद करना। अरे आपको देखना तो है, नाम याद नहीं आ रहा। उससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है वर्ड्स को याद करना। सोफा किसका बना हुआ था? उसके ऊपर कौन बैठा था? वर्ड्स को याद करना। सबसे आसान होता है मूवीज को याद करना, उससे बाद याद होता है, उससे कम इजी होता है इमेजेस को, फिर वर्ड्स को। उससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है पैराग्राफ को याद करना। पैराग्राफ याद करना डिफिकल्ट होता है, यस और नो? और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या होता है? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या होता है? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को याद करना, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है नंबर्स को याद करना। आपने याद कर लिया? कौन है जो टेस्ट लेने के लिए रेडी है? आप हैं? आ जाइए, इनका टेस्ट लेते हैं। और वेरी गुड, प्लीज स्टॉप। बैटरी डेड एलईडी बैटरी देखो ना यार, हाँ से कमी सेट डेड जो तो डिफिकल्ट हो रहा था, यस और नो? कोई बात नहीं, वेरी गुड, यस। यू वांट टू ट्राई? हमने देखा कि डिफिकल्टी आ रहा है ना, नंबर बोलने में, 5 0 बोलने में, ठीक है। इन लोगों ने कोशिश करा, तीनों बच्चों ने, वेरी गुड। और आप सब बच्चों ने भी कोशिश किया होगा, 7 4 बोला, फिर 8 5 बोला, कोशिश करा सबने 5 5, ठीक है, 5 0। अब आपको मेरा टेस्ट देना है, रेडी? आप लोग मेरा टेस्ट लेने के लिए आपके मेथड से यूज किया। आपने कौन सा मेथड यूज किया? रट्टा मार। कौन सा मेथड यूज किया? रट्टा मार। रट्टा मार किया या कैलकुलेशन किया। अब आपको मेरा टेस्ट लेना है और करना क्या है? मेरी मिस्टेक्स को काउंट करना है, मुझे बीच में हेल्प नहीं करना, लास्ट में मुझे बताना है मेरा कौन सा रैंक है। रेडी आप लोग मेरा टेस्ट लेने के लिए? रेडी है, यस और नो? स्पीड लाउड है, यस और नो? पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 35 होते हैं। अगर मैंने 40% सही बता दिया तो पास कर देंगे आप लोग? मुझे कर देंगे ना? ओके।
बस उम्मीद करूँगा कि पास हो जाऊँ। बीच में मुझे हेल्प करना, ठीक है? बीच में प्लीज हेल्प करना, मेरी मिस्टेक्स काउंट कर लेना और लास्ट में मुझे बता देना, ठीक है? टेस्ट के लिए रेडी हो जाऊँ मैं? भगवान बस बचा लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पास करा देना, वरना सारे बच्चे होंगे सर फेल हो गए। कौन से सर? इंडिया जीडी मैथमेटिक्स वाले रेडी आप सब लोग टेस्ट देने के लिए? कैसा ना हो? ओके, भगवान बचा लेना, बीच में हेल्प मत करना और विद द ब्लेसिंग्स ऑफ दुनिया मोदिसा, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ जगन्नाथ जी मैं अपना टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। ओके, so the numbers are 7 4 3 5 9 1 9 9 and 9 9 divided by 7 0, after that 8 5 6 2 8 0 3 0 8 1, after that it is 5 5 6 9 2 0 2 0 plus 4 5 6 8, after that 5 0 6 6 and 6 6 के बाद it is 4 2 1 8 7 9, after that it is 7 2 9 2 3 7 1 0 5। तो कैसा लगा मेरा मेमोरी? पतलू बनी या बाहुबली? तो मैंने क्या आप तीनों वाला मेथड यूज किया या कोई टेक्निक था? ये टेक्निक कौन कौन सीखना चाहता है? 100 कितने बच्चे सीखना चाहते हैं? क्या नेक्स्ट संडे 12 बजे आप सब लोग फ्री? ऐसा ना हो, कैसा ना हो? तो उसमें हम आपको कुछ सिखाने वाले हैं, पर उससे पहले कोई ऐसा बच्चा था जिसने कोई नंबर बोला था? कोई होगा ना जिसने नंबर को बोले थे आप में से? हाँ, आपके कौन सा नंबर बोला था? 35। इन्होंने 35 बोला था। मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। 35 से पहले 7 4 और 35 के बाद 9 1, सही है? ओके, यस, हाँ बोलिए। किसी ने कोई नंबर बोला था? यस बच्चा, आपको कौन सा बोला था? 91। ओके, 91 बोला था। 91 से पहले 35, 91 के बाद 99। यस, 42 बोला था। 42 के आगे है 18 फिर 79 और 42 से पहले है और दैट इज 42 से पहले क्या है? यस, 66। तो क्वेश्चन मुझे पूरा तो याद नहीं, बीच में से भी याद है। ऐसी पावरफुल टेक्निक कौन कौन सीखना चाहता है? हैंड रेज कीजिए। सीखना चाहते हैं सब लोग? सारे बच्चे सीखना चाहते हैं? नेक्स्ट डेटा और बताता हूँ। आप में से कोई है जिसको अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ? यस, बताओ। 29 जून 2012। ओके, मुझे आपको आंसर बताने के लिए फ्राइडे, आप फ्राइडे को करना है, सही है? मैंने 10,000 साल का कैलेंडर याद करके फास्टेस्ट वे में याद करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कितने बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ? यस और नो? यस, और कोई पेरेंट है जो अपना डेट ऑफ बर्थ पूछना चाहता है? यस, पूछिए। हाँ, 23 दिसंबर 23 सितंबर, उसके बाद 2019। ओके, मंडे, सही है? ओके, अब नेक्स्ट साइड। हाँ, 8 दिसंबर 2014, मंडे। ओके, नेक्स्ट साइड।
विश्व रिकॉर्ड बनाना और जो बच्चों ने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, अभी आपको कितना समझ आया? अब हम क्या करेंगे, आप सबका एक ग्रुप बना लेंगे। मैं सशमिता मैम को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा और आपको भी स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। ब्रेक स्कूल टीम को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। ब्रेक स्कूल टीम में आप आ जाइए, ब्रेक स्कूल टीम स्टेज पर आ जाइए। अच्छा और फर्स्ट रैंक आ गया बच्चा, तो फिर ज़्यादा कर जाए। लेकिन मैंने आप वाला करने यूज किया लगता बात, मेरे पास से सारे वर्ड्स इमेजेस में से इजी बता दिए। आ जाइए। अब क्या होगा, जितने बच्चे नेक्स्ट संडे 12 रूम पे फ्री हैं, उनका एक ग्रुप बन जाएगा। अच्छा, सबने अपना नाम लिखा दिया बाहर वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट के लिए? हाँ, सबने लिखवा दिया। तो आपके सर्टिफिकेट आपको स्कूल में जाकर सबको देना है, अनाउंस करके जिन जिन बच्चों ने अटेंड किया है। समझ आ गया सारे बच्चों को? यानी आपने अपना नाम और स्कूल नंबर आपके पास आ जाएगा। वहाँ पर स्टेज पे आपको मिले 3 to 4 days आपको बता देंगे। सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी बच्चे सीखना चाहते हैं, फटाफट से स्टेज पे आ जाओ, जल्दी से। जल्दी से जल्दी से आ जाओ। अरे बहुत सारे बच्चे, वेरी गुड। आपको समझ आया मेरी खोपड़ी जानकर? ऐसी खोपड़ी आपकी हो जाएगी। आ जाओ। आ जाइए। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। आ जाइए, आराम से आ जाइए। अच्छा, अब मुझे बताइए ऑनेस्टली, क्या आज आप यहाँ आए, आपका समय वेस्ट हुआ या आपको अच्छा लगा? अभी एक पहला सेशन था, मैंने याद करके दिखाया। नेक्स्ट संडे जब आप सीखने आएंगे, जब आप पूरा पेज एक बार पढ़कर याद करेंगे, तो आपका विश्वास इस प्रोग्राम पे और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? चूंकि बच्चे ज़्यादा है तो हम इसको 2 बैचेस में डिवाइड कर देंगे। अभी शाम को 4 बजे हमारा वापस से सेशन है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। हम 20 स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको 2000 रुपीज़ का बोनस मिलेगा। तो वो ये है कि नेक्स्ट संडे जो क्लास होगा उसका फीस 2000 है, लेकिन